नमस्कार, एनजीएन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मास्टर स्ट्रोक भी ऐसा कि किसी को पता नहीं कि होगा क्या। अचानक 18 से 22 सितंबर के लिए 5 दिन का विशेष सत्र सदन का बुलाया गया। चर्चा यह है कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के फार्मूले पर आगे बढ़ने के लिए संसद में बिल ला सकती है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया। जो मोदी की स्टाइल है, एकाएक करना, जल्दी करना और किसी को पता नहीं चले, सस्पेंस अंतिम समय तक कायम रहे, इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब विपक्षी दल महाराष्ट्र के बॉम्बे के समुद्री किनारे पर आलीशान होटल में सत्ता के समीकरण को अपने हिसाब से साजने में लगे थे, तभी यह खबर आ गई कि एक विशेष सत्र संसद का आयोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं इसको लेके भाजपा कितनी उत्साहित है। इसका अंदाजा आपको गुजरात भाजपा के प्रदेश प्रमुख CI पाटिल के बयान से लग जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा अनेक बार वन नेशन वन इलेक्शन की बातों चर्चा में मूकी है। एना फायदा અને આ નહીં હોવાના કારણેના क्या फायदा એની પણ વિગતવાર વાત કરી છે। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होवाने कारणे आखा देश में सतत कोईक ने कोईक इलेक्शन चालतुं होय छे। एना कारणे अधिकारीओ सतत ए इलेक्शनना काममां बिजी होय छे। एना कारणे एमना किंमती कलाको बगड़ता होय छे, किंमती दिवसो पण बगड़ता होय छे अने आचारसंहिता वारंवार नाखवाने कारणे विकासना कामों पण खोरंबी पड़ता होय छे। जे काम समयसर थवा जोईए, जेनो लाभ लोकोने मळे तेना पण लेट थतुं होय छे। अनेक प्रकारना खर्च पण एना कारणे वधे छे अने अनेक प्रकारनी अनियमितता पण आना कारणे थती होय छे। એટલા જ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચ બચી શકે, કેટલા કલાકો બચી શકે, કેટલા ઝડપમાં કામો થઈ શકે અને ખૂબ વિગતવાર ચર્ચા વારંવાર દેશ સમક્ષ અને દેશની અલગ અલગ પાર્ટીઓ સમક્ષ પણ મૂકી છે। આજે વન નેશન વન ઇલેક્શન માટેની કમિટી બનાવવામાં આવી છે। શ્રી રામનાથ કોવિંદ એમના અધ્યક્ષ સ્થાને આ કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે અને મને વિશ્વાસ છે કે દેશની તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ પણ આ વિષયમાં પોઝિટિવ વિચારશે। દેશના હિત માટે બધી જ પાર્ટીઓ કામ કરવા માંગતી હોય તેમણે આવા મુદ્દાઓ પર પણ રાજકારણ કરવાને બદલે દેશનું હિત જોવું જોઈએ અને આમાં સમર્થન આપવું જોઈએ એવું મને લાગે છે। છતાં જે કમિટી નિર્ણય કરશે એની પર ચર્ચા થશે, એની પર નિર્ણય થશે, પણ મને વિશ્વાસ છે કે અત્યંત આવશ્યક આ નિયમ છે અને આ કરવું જોઈએ તો મારો પોતાનો પણ સ્પષ્ટપણે મત છે। સર, આ પોલિસીથી કેટલો ફાયદો થશે દેશને? વન નેશન વન ઇલેક્શનને કારણે એક સાથે બધા જ ઇલેક્શન સાથે થવાને કારણે લોકોનો સમય બચશે। આચારસંહિતાના કારણે જે કામો રોકાય છે એ પણ બચશે, ખોટો ખર્ચ પણ બચશે। અધિકારીઓ સતત ઇલેક્શનના કામમાં રચ્યાપચ્યા રહેવાને કારણે વિકાસ તરફ એમનું ધ્યાન ઓછું થઈ જાય છે અથવા સમય ઓછો આપી શકે છે। એ પણ ફાયદો થશે કે વધુ સમય દેશના હિતમાં કે લોકોના હિતમાં આપી શકશે અને આ રીતે રાજકારણીઓ પણ સતત અલગ અલગ દિવસોમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં પ્રચારને બદલે એક ચોક્કસ સમયગાળામાં પ્રચાર કર્યા પછી બાકીનો સમય દેશ હિતના કામમાં વાપરી શકશે। સાહેબ, ખર્ચો બહુ મોટો થતો હોય છે ઇલેક્શનમાં, તો એનાથી કેટલો લાભ થશે? રૂપિયા કઈ રીતે વધશે? કેટલી જનતાનો સેવા કરી શકાશે? રૂપિયામાં કેટલો થશે એનો મને હમણાં ચોક્કસ અંદાજ નથી, પરંતુ ખૂબ અબજો રૂપિયાનો ફાયદો આના કારણે થશે। પૈસા તો બચશે જ બચશે, માનવ કલાકો પણ અત્યંત મહત્વના છે કે જે ફરી પાછા આવતા નથી, તો એમાં પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થશે। तो आपने देखा CI पाटिल ने किस तरह से इस फैसले को अपनाया, स्वागत किया। अब हम सुनते हैं भाजपा के ही गुजरात के मुख्य प्रवक्ता और लंबे समय से एक ही जिम्मेदारी को निभा रहे हैं ब्लू आई बॉय डॉक्टर ML व्यास की प्रतिक्रिया।
સરકાર દ્વારા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રામનાથ કોવિંદની અધ્યક્ષતામાં વન નેશન વન ઇલેક્શન માટે એક કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે અને આ એક ખૂબ જ આવકારદાયક પગલું છે, કારણ કે રાષ્ટ્રમાં જ્યારે પણ જોઈએ ત્યારે કંઈક ને કંઈક ઇલેક્શન ચાલતા હોય છે અને એના કારણે અધિકારીઓ અને અન્ય લોકોના ખૂબ અમૂલ્ય સમયનો બગાડ થતો હોય છે। એક ઇલેક્શનના કામમાં તેઓ રોકાયેલા રહે છે, જેના કારણે વિકાસના કામોને ક્યાંક ને ક્યાંક અસર થતી હોય છે। આચારસંહિતા લાગી જવાના કારણે પણ વિકાસના કામોમાં બ્રેક વાગતી હોય છે અને એનાથી હું એવું માનું છું કે આ જે પગલું લેવામાં આવ્યું છે અને એક કમિટી જે કંઈ પણ રિપોર્ટ આપશે એના ઉપર આગળ જતાં સરકાર અમલ કરશે અને જો જે રાજ્યમાં તમામ રાજ્યોમાં અને સંસદનું ઇલેક્શન એક જ સમયે થાય તો તે દેશના હિતમાં હશે અને 1952થી 1967 સુધી આ પ્રમાણે જ પ્રક્રિયા થતી હતી અને હજુ પણ આગળ જતાં એવું થાય તો તે ખૂબ આનંદની બાબત છે। રિપોર્ટ પણ સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે 3 કમિટી દ્વારા। કઈ કમિટી દ્વારા રિપોર્ટ સુપ્રત કરવામાં આવ્યો છે અને તે અંતર્ગત કેવી બાબતો હોઈ શકે? 2016 બાદ કેન્દ્રની પાર્લામેન્ટરી કમિટી, નીતિ આયોગ અને અન્ય એક સંસ્થા દ્વારા 3 જુદા જુદા રિપોર્ટો, લॉ કમિશન, ત્યાં ત્રણેય દ્વારા એક રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યા છે, એ પણ સરકાર પાસે છે અને હવે આજે જે ઉચ્ચ કોટીની કમિટી બની છે એ પણ તેનો રિપોર્ટ આપશે। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि उनको बिल लाने दीजिए, हमारी लड़ाई जायज रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन से हासिल क्या होगा? 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तब तो वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ था। समय के साथ 57, 62 और 67 तक यह सिलसिला चला, लेकिन 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग हो गई और फिर वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। लेकिन अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अभी इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता नहीं है। भारत जैसे विविधता वाले देश में, डाइवर्सिटी वाले देश में प्रधानमंत्री की तमाम लोकप्रियता के बावजूद रीजनल फोर्सेज यानी क्षेत्रीय छत्तर बड़े मजबूत हैं, जहां ना मोदी की दाल गल रही और ना भाजपा की। उड़ीसा एक इसका उदाहरण हो सकता है कि लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनाव उड़ीसा में एक साथ होते हैं, लेकिन विधानसभा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाता है, जबकि लोकसभा चुनाव में उसके सदस्यों की संख्या आधी हो जाती है। वहां पे भाजपा बड़ी तेजी के साथ उछाल दर्ज करती है और डबल डिजिट फिगर हासिल कर लेती है अकेले उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विधानसभा में 2/3 मेजोरिटी लेती है, लेकिन लोकसभा में 42 में से 18 सीटें बीजेपी जीत लेती है। केरल, तमिलनाडु, यह वह राज्य है जहां प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बावजूद बीजेपी अभी कमल खिलाने में राज्य चुनाव में कामयाब नहीं हो पाई। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन से एक राष्ट्रीय माहौल पे बात होगी, नेशनल इशूज पे बात होगी और उसमें रीजनल इशू दब जाएंगे और बीजेपी को लगता है कि इसका एक बड़ा फायदा उसको मिलेगा। दूसरा कारण, संसाधन, आर्थिक संसाधन बीजेपी के पास सबसे ज्यादा है। क्षेत्रीय दलों की खर्च की अपनी सीमाएं हैं। यदि चुनाव एक साथ होता है तो दूसरे दल, खासतौर से जो क्षेत्रीय दल हैं और जो राष्ट्रीय के तौर पर अपना दम्भ भरते हैं, लेकिन एक
क्षेत्र विशेष में उनका प्रभाव होता है, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, सीपीआई हो गया, एनसीपी हो गई, जो अपने मूल राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं। उनके पास संसाधन की कमी हो जाएगी और संसाधन की खेल में वह पिछड़ जाएंगे, क्योंकि उनको अपना मैक्सिमम संसाधन अपने एक राज्य में इस्तेमाल करना होगा। तीसरा फायदा, स्टार कैंपेनर। नेशनल पार्टी के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या में स्टार प्रचारक हैं। स्टार प्रचारक भी ऐसे जिनकी दूसरे राज्यों में कम से कम एक फेस वैल्यू है, फेस आइडेंटिटी है, लेकिन जो रीजनल फोर्सेज हैं उनकी दूसरे राज्यों में कोई फेस वैल्यू नहीं है, सिवाय उनके चीफ लीडर यानी जो भी उनका मुख्य नेता है उसको छोड़ के। जैसे बहुजन समाज पार्टी, मायावती को सब जानते हैं, लेकिन मायावती के बाद कौन? तो यदि एक देश एक इलेक्शन होगा तो अकेले मायावती कहां कहां जाएंगी? बीजेपी के साथ यह फायदा है कि उनके पास एक लंबी टीम है। नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, स्मृति ईरानी है, तमाम वह नाम है। जब आप सरकार में होते हैं तो आपके तमाम मंत्री जाने पहचाने जाते हैं, क्योंकि उनको उतना मीडिया स्पेस मिलता है। चौथा सवाल, मीडिया। मीडिया चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह सबको पता है, और आजकल बीजेपी की इसमें मास्टरी है। तो रीजनल फोर्स, एक उदाहरण के तौर पे हम इसको कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो भी मीडिया पोस्टिंग करती है उसमें अखिलेश यादव होंगे, उसमें मायावती होंगी, उसमें जैन होंगे, और उसमें योगी आदित्यनाथ, मोदी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या अजय राय कोई भी होंगे। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इलेक्शन एक साथ होगा, तो कौन होगा? अखिलेश यादव होंगे? नहीं होंगे। मायावती होंगी? नहीं होंगी। जयंत होंगे? नहीं होंगे। तो जो स्पेस है डिस्कस का, वह छोटे नेताओं से हट जाएगा। जो कैमरे का फोकस है वो बड़े नेताओं की तरफ चला जाएगा। पांचवा और सबसे अहम वह यह है कि राष्ट्रीय धारणाओं पे जब चुनाव होता है तो धारणाएं सेट करने का हाथ बड़े खिलाड़ियों के पास हो जाता है। मान लीजिए बीजू पटनायक उड़ीसा में कोई बात कहते हैं तो उसका नेशनल स्पेस कहाँ है? आप पिछले 5 साल के मीडिया कवरेज, खासतौर से नेशनल मीडिया, इंग्लिश और हिंदी उठा के देख लीजिए, उसमें नवीन पटनायक को कितना स्पेस मिला है? नवीन पटनायक से बड़ा स्पेस शिवराज सिंह चौहान को मिला। क्यों? यही जो खेल है ये विपक्ष को कमजोर बनाता है। अब विपक्ष क्यों इस बिल के खिलाफ है? विपक्ष को यह लगता है कि उसके अवसर कम हो जाएंगे। लेकिन एक और कहानी है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है। कहानी यह है कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा नहीं आएगा। एजेंडा आ सकता है पार्लियामेंट सीट के डिलिमिटेशन का। वैसे भी जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें सदस्यों के बैठने की संख्या बढ़ाई गई है और डिलिमिटेशन यदि होता है, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होना है, यदि पूरे देश में लोकसभा
का डिलिमिटेशन फिर से किया जाता है तो चुनाव 1 साल खिंच जाएगा। और 1 साल वह समय है जिसमें ये जो विपक्षी गठबंधन है, जो विपक्षी एकता है, वह आसानी से टूट जाएगी। तब तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव अभी हैं। यदि समय पे लोकसभा चुनाव होता है और डिलिमिटेशन नहीं होता तो मई 2024 में नई सरकार वापस बन रही है। यानी इन 3 चुनाव के बाद ही, और ये तीनों चुनाव में भाजपा की हालत बड़ी अच्छी अभी कम से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी एक ढलान के मोड़ पे है, वह सोशल मीडिया से दिखता है। आप देखिए तो पिछले कुछ दिन में लगातार वह घोषणाएं हुई। रक्षाबंधन के 1 दिन पहले सिलेंडर के दाम का 1-200 रुपया कम हो गया। पेट्रोल डीजल पर भी राहत मिलने की जल्दी ही उम्मीद है। तो सरकार वह तमाम चीजें कर रही है जिससे एक जनहितैषी चेहरा सामने आए। लेकिन क्या होगा यह बिल में पता चलेगा। लेकिन एक जो सबसे चिंता का विषय है वह यह है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कितने दिन तक साथ में काम कर पाएगा। 92 में लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन की थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, और तब यह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पुराने रिकमेंडेशन पर वह स्टैंड नहीं ले पाए और आज वह उनके लिए मुसीबत का कारण बने हैं। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। शाम को इंडिया और एनडीए के गठबंधन पे भी हम आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश और प्रोड्यूसर हनीफ सिंधी के साथ नमस्कार।